Hello students, welcome to online classes of Kerala Public School. Today we are going to continue our topic linear equation in two variables. Today we will cover exercise 4.4 from NCERT exemplar book, and after that this chapter will be finished. We will start a new chapter in next video. Okay, so let us start. Here you can see we have question exercise 4.4. Okay, so let us read question number first. In question number first, what we have saw that the points A with coordinates 1, 2, B with coordinates -1, -16, and C with coordinates 0, -7 lie on the graph of a linear equation y is equal to 9x minus 7. क्लियर. सो हमें क्या शो करना है, हमें एक्चुअली ये शो करना है कि ये तीन पॉइंट्स जो हैं 1 A, B एंड C, गॉट इट, इस लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू 9x माइनस 7 के क्या है, सॉल्यूशन है. गॉट इट. सो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं. या तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और ग्राफ ड्रॉ करके हम इन पॉइंट्स की हेल्प लेंगे. गॉट इट. और इन पॉइंट्स को हम कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे और चेकआउट करेंगे इनसे होके एक लाइन जाती है या नहीं. गॉट इट. दूसरा ये भी हो सकता है कि हम वन बाय वन इन पॉइंट्स को हम इक्वेशन में पुट करेंगे रेस्पेक्टिव एब्सिस और ऑर्डिनेट का वैल्यू और चेकआउट करेंगे कि गिवन कोऑर्डिनेट्स जो हैं इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या फिर नहीं करते. अगर सेटिस्फाई करते हैं तो गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा और अगर नहीं करते तो सॉल्यूशन नहीं होगा. तो चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशंस कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो हियर वी हैव equation y is equal to 9x minus 7, and we have three coordinates points A, B and C with coordinates 1, 2, -1, minus 16 and 0, minus 7 respectively. Got it. So first of all what we will do, we will put x is equal to 1 and y is equal to 2 from coordinates A. The coordinates of point A is 1, 2, so we will put both value x is equal to 1 and y is equal to 2 in given equation y is equal to 9x minus 7. So you can say y is equal to 2, so here we have put 2, got it, and that is 9x, so it should be 9 multiply 1 minus 7. So you can say in left hand side we have 2 and nothing to solve, but in right hand side what we have, 9 1 are 9, 9 into 1 and minus 7, so 9 into 1 become 9, 9 minus 7 is equal to what we got, 2. So we can say left hand side and right hand side both are equal, so we can say this point A with coordinates 1, 2 is a solution of given equation y is equal to 9x minus 7. And similarly now to check whether B with coordinates -1, 16 is a solution of given equation y is equal to 9x minus 7, we are going to put x is equal to -1 and y is equal to -16. As you know, x is the value of abscissa and y is the value of ordinate. Got it. And the same things we are going to check. So we have put -16 as a y, so we got -16 is equal to, this time in right hand side what we have, 9 is to -1, okay, and -7, so 9 is to -1 become -9 minus 7, that is equal to -16. So you can say left hand side and right hand side for coordinate -1, -16 is also satisfy the given equation y is equal to 9x minus 7. Hereby we can say that B with coordinates -1, 16 is a solution of given equation. The same things we can check for the coordinate C. So this time we are going to put x is equal to 0, x is equal to 0 and y is equal to -7. So you can see over here that y is equal to -7 we have put, and that should equal to 9 multiply 0, since x is equal to 0 over here, -7. So 9 multiply 0 becomes 0, -7, that is equal to -7. Clear. So we can say that the all three coordinates A, B and C are the solution of given equation. Clear. Because we can see that the line y is equal to 9x minus y satisfied the points A, B and C. Therefore A, B and C solution of linear equation y is equal to 9x minus 7, and
these are lying on graph of linear equation y is equal to 9x minus 7. Clear? So let us go to next question, question number 2. In question number 2, what we have, that the following observed value of x and y are thought to be a satisfied a linear equation. Write a linear equation. Clear? Also draw the graph of using these value of x and y given in above table, and thereafter we have to find that at what point the graph of linear equation cut the x-axis and cut the y-axis. Got it? So let us see how to solve this question. So to solve this question you have to remember one thing, कि ये जो क्वेश्चंस है ये एक्चुअली स्टैंडर्ड 9th के लेवल का नहीं बनता. ओके, सो इसके लिए हम एक फॉर्मूला लर्न करेंगे, और वो फॉर्मूला क्या है, अगर आपको ऐसा कभी एक कोई इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ जाए जो 2 पॉइंट से होके जाती है, गॉट इट, तो उसके लिए हम क्या, एक फॉर्मूला है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स. उनमें से एक पॉइंट कौन सा है, x1 y1, दूसरा पॉइंट कौन सा है, x2 y2. तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. गॉट इट. और जो दो कोऑर्डिनेट्स आपको क्वेश्चन में गिवन थे वो क्या क्या थे, x1 इज इक्वल टू 6, y1 इज इक्वल टू माइनस 2, x2 इज इक्वल टू माइनस 6 एंड y2 इज इक्वल टू 6. गॉट इट. सो हम रेस्पेक्टिव वैल्यू इसमें पुट करेंगे, y और x का वैल्यू नहीं पुट करेंगे, किस किस का पुट करेंगे, x1, x2, y1 और y2. So we got that y minus of minus 2 is equal to 6 minus of minus 2 divided by minus 6 into x minus 6. आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ से y1 का वैल्यू था कितना हमारे पास -2, उसके बाद y2 का वैल्यू है +6 जो यहाँ पे आया है, माइनस y1 -2 जो यहाँ से आया है, डिवाइड बाई x2 माइनस x1. दैट मीन्स -6 किसका वैल्यू था, x1 का, x2 का वैल्यू था -6 और x1 का वैल्यू है 6. सो वी गोट -6 ओके इंटू x माइनस और फिर x1 का वैल्यू जो कितना है आपके पास 6. सो वी गोट x माइनस 6. तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे. सो 6 माइनस ऑफ -2 बिकम 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, माइनस 6 बिकम -12. सो हमने इनको क्या किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए, किससे डिवाइड करके, 4 से. So 4 2 is 8, 4 3 is 12. So we got y plus 2 is equal to 2 minus 2 by 3 into x minus 6. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, सो y प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, सो 3y प्लस 2 6 मल्टीप्लाई होने के बाद, और आगे से आपको राइट हैंड साइड में कितना मिलेगा, -2x प्लस 12. क्लियर. सो आप देखो -2x को हमने क्या किया, ट्रांसपोज, 12 को भी ट्रांसपोज किया. सो ये माइनस की टर्म्स थी, ट्रांसपोजिशन के बाद पॉजिटिव हो जाएगा. सो वी गोट 3y प्लस 2x प्लस 6 ये ऑलरेडी था लेफ्ट हैंड साइड में, और 12 राइट हैंड साइड से आया तो नेगेटिव हो गया. गॉट इट. सो वी गोट 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और वी कैन से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. सो ये तो है बच्चे हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन. गॉट इट. सो इससे आगे जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था उसको देखते हैं. अभी आगे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था दैट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशन of x and y given in the above table, at what point the linear graph of linear equation cut x axis and y axis. तो इसका ग्राफ अब आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, आप सभी को आता है. क्लियर. और ग्राफ से ही आप पता कर लेंगे कि a जो है x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा और y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा. गॉट इट. सो मैं आपको दिखा देता हूँ, गॉट इट, कि ये कहाँ पे कट करेगा. ग्राफ में मैं आपको शो कर देता हूँ, ड्रॉ आप लोग करेंगे इसको. ये इस इक्वेशन का ग्राफ है. ओके जो आप देख सकते हो कि ये एक्स एक्सिस को तो इंटरसेक्ट करता है किस पे, इस पॉइंट पे, जो क्या है इसके कोऑर्डिनेट्स 3,0. गॉट इट. आप भी मैच कीजिएगा जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है 0,2 पे. क्लियर. सो ये दो को हैं, ये किसके लिए है, एक्स एक्सिस के लिए, और ये वाई एक्सिस के लिए. तो ग्राफ आप लोग ड्रॉ करेंगे और मैच करेंगे कि आपके आंसर सेम आए हैं या फिर नहीं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है. क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6. एट व्हाट पॉइंट द ग्राफ कट द x एक्सिस एंड y एक्सिस. इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं, तो मैं चाहूँगा इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें और फिर x एक्सिस और y एक्सिस पे ग्राफ कहाँ इंटरसेक्ट होता है उसका आंसर सॉल्व करें. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.
In question number 4, what we have, you can see that the linear equation convert Fahrenheit to Celsius given by the relation. Okay, and what is the relation? That is equal to C is equal to 5F minus 160 upon 9. गॉट इट बेटा, ये वो ही क्वेश्चन है जो आप एनसीईआरटी की बुक में पढ़ चुके हो. इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो देखो ये आ जाएगा 9C इज इक्वल टू 5F माइनस 160. गॉट इट. 160 को ट्रांसपोज करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? मिलेगा 9C प्लस 160 दैट इज इक्वल टू 5F. गॉट इट. और अगर आप F को लिखेंगे तो F इज इक्वल टू आ जाएगा 9C प्लस 160 डिवाइडेड बाई 5, जिसको आप ये भी लिख सकते हो 9/5C. गॉट इट. प्लस 32, जो कि आप एनसीईआरटी बुक में पढ़ चुके हो. तो बिल्कुल सेम कुछ तरह का क्वेश्चन है. आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में एक रिलेशन दे रखा है, तो उसमें आप क्या करेंगे? रेस्पेक्टली सॉल्व कर लेंगे. गॉट इट. तो उसी तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है that if the temperature of a liquid can be measured in Kelvin units, K of Fahrenheit units as Y, a relation between two systems of measurement of temperature is given by linear equation. ये दिया गया है आपको. गॉट इट. सो आपसे क्या फाइंड आउट करना है? आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इन Fahrenheit और टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 313 केल्विन. मैं चाहूँगा इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व करें. गॉट इट. क्योंकि सेम कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन बने हुए हैं जिनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 भी इस तरह का क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखा रीड करके तो क्या दिया गया है? द फोर्स एक्सटेंड टू पुल ए कार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस टू द बॉडी. बेटा इसी तरह का क्वेश्चन है जैसा एनसीईआरटी में हमने पढ़ा था. एक्सप्रेस द स्टेटमेंट एज ए लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट मास इक्वल टू 6. यहाँ पे कांस्टेंट मास की वैल्यू आप क्या लेंगे? 6 लेंगे. ओके. रीड द ग्राफ फ्रॉम द फोर्स. ठीक है. एफ जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एक्सीलरेशन के. गॉट इट. तो यहाँ से इस इक्वेशन को लेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जब इक्वेशन बनाएंगे तो एफ इज इक्वल टू आ जाएगा m इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन. ओके. और मास आपको दिया गया कांस्टेंट है कितना? 6 kg. गॉट इट. सो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? f इज इक्वल टू 6 इंटू एक्सीलरेशन. क्लियर. सो इस इक्वेशन को लेके आपको ग्राफ ड्रॉ करना है. अब आपको बोला गया है कि एक्सीलरेशन कितना है? एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो आपके पास फोर्स कितना हो जाना चाहिए? फोर्स हो जाना चाहिए था, देखो आपके पास मास था 6, सो 6 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 30 न्यूटन. क्लियर. फोर्स जो है न्यूटन उसका यूनिट है. ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? एफ इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई, क्योंकि इस बार एक्सीलरेशन दिया गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 36 न्यूटन. क्लियर. सो इस तरह से आप इसको ड्रॉ करेंगे, इक्वेशन बना के ग्राफ ड्रॉ करेंगे और सॉल्व करेंगे. सो ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई. इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो भी पूरा हो गया. नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तब तक थैंक यू. स्टे सेफ एंड स्टे होम. थैंक यू. बाय बाय.